Hello everybody and welcome back to my channel. So today we will continue with the class 10th NCERT Economics chapter 2nd. Name of the chapter 2nd is Sectors of Indian Economy. As we have already discussed the chapter development, like how we measure the development of the countries, it depends upon the national income, per capita income and other factors such as health and education. So today we will discuss about the sectors of Indian economy. In this chapter, these are the major contents. First one is sectors of economic activities. Then we will compare the three different sectors. Then GDP, major concept, and historical change in the sectors. As you know, that sectors are divided on the basis of economic activities. Economic activities means which are done for the profit motive, or you can say for the generation of income. So first one is primary sector. Okay, you may be astonished that in this picture I have categorized 4 and I am speaking like there will be 3 sectors. The thing is, major classification of the economic activities can be done in the 3 sectors, but if we talk about today's era, then 4 sectors can be there. Okay, because of involvement of digitalization, ICT and all that. Okay, so first one is primary sector. Primary sector means which is engaged in the extraction of natural resources, means farming, mining, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंडर आते हैं. वो सारी एक्टिविटीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हैं. सेकेंडरी सेक्टर मीन्स it involves industries, majorly industries and manufacturing concerns, तो वो है secondary sector. Then comes tertiary. Tertiary means the service sector and which includes the services such as professional services, social services, entertainment and personal services, or you can consider banking, insurance, these kind of services. Next comes quaternary. It includes ICT, Information Communication Technology and Research Development. देखो जो क्वाटरनरी सेक्टर है ये नया इन्वॉल्व सेक्टर है क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रही है. एवरीथिंग वी आर लाइक नाउ ऑल्सो यू पीपल आर स्टडिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस ICT एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंड इसको हम कंसिडर करते हैं क्वाटरनरी एक सेपरेट सेक्टर में. बट अगर आप 10th बेसिस पे इस वीडियो को देख रहे हो फॉर द 10th पर्पज ओनली, तो आप 3 सेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपैटिटिव एग्जाम, like you are going through all the NCERTs from 9th to 12th of economics, then you must be aware of the quaternary sector as well. So primary sector involves, अब हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं. इसके बेसिस पे MCQ हो सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है. डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आएगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की हो सकती है, लाइव स्टॉक की भी. फिशिंग आएगी, माइनिंग ऑफ कोल आयरन, मिनरल एक्सट्रैक्शन सच एज ऑयल, फॉरेस्ट्री. तो ये सब चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में होंगी जो प्राइम स्टेज पे काम हो रहे हैं. फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज से जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो सारा प्राइमरी सेक्टर में आएगा. अगर हम प्राइमरी सेक्टर को डिटेल में स्टडी करें, द प्राइमरी सेक्टर वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सेंटर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मदर अर्थ, बी इट एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग. इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर. As we know, if we talk about the independence time, at that time 72.7% people were dependent upon agriculture, and right now 61.5% people are dependent upon agriculture. तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का एक मेजर एग्जाम्पल है एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं. ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर आएगा. फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ये सब चीज़ें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आएंगी. बट प्राइमरी सेक्टर को हम मेजर कंसिडर करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड. ओके, नेक्स्ट कम्स सेकेंडरी सेक्टर. द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैन्युफैक्चर्स finished goods. See, here is a term finished goods. There are 2 kinds of goods. One is intermediate
सेकेंड वन इज़ फिनिश्ड गुड्स। देखो जो भी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है वो रॉ मटेरियल है, वो इंटरमीडिएट गुड है। फॉर एग्जांपल शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो रॉ मटेरियल है, उसको प्रोसेसिंग करके शुगर बनेगी तो वो क्या हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया। ठीक है, सो ऑल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लाइज विद इन द सेकेंडरी सेक्टर। Activities associated with the secondary sector include metal working and smelting, automobile production, textile production, energy utilities, engineering, construction, shipbuilding. These kind of things comes under secondary sector. तो सेकेंडरी सेक्टर सेकेंड स्टेज वाला सेक्टर है जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। अगर हम इसको एक सिनोनिमस वर्ड से डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नेक्स्ट कम्स टर्शरी सेक्टर। टर्शरी को हम अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर। ये एक वाइडर टर्म है। देखो जो हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिस्कस किया उसमें सारी गुड्स थी। गुड्स मीन्स द थिंग्स दैट यू कैन सी, दैट यू कैन टच एंड आर यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो एक गुड है, GOOD, गुड। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द शुगर केन की प्रोसेसिंग हुई, उसको शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया तो वो शुगर भी वी कैन सी, वी कैन टच, तो वो भी एक गुड है। तो वो सारी टेंजिबल गुड्स हैं। बट टर्शरी सेक्टर में इनटेंजिबल गुड्स होती हैं। इनटेंजिबल गुड्स या फिर सर्विसेज एक ही बात है। इनटेंजिबल देखो कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो। टीचर आपको टीच कर रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है तो वो भी एक सर्विस है, उसको आप अवेल कर रहे हो। Teacher is rendering the service, you are availing the same, but you cannot see the service, you cannot touch the service, simply you can experience the same, right? तो टर्शरी सेक्टर में वो सारी इंटेंजिबल गुड्स आएंगी जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सारी सर्विसेज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन सर्विसेज, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारे टर्शरी सेक्टर का पार्ट हैं। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। कीप इन माइंड, प्राइमरी को एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को इंडस्ट्रियल, टर्शरी को सर्विस सेक्टर। इन सिंपल टर्म्स यू कैन कीप इन माइंड लाइक दिस। नाउ वी विल कंपेयर दीज थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा दैट इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज़ जिसको हम जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, देयरफॉर दिस सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अब देखो हमने कंपेयर करना है तो पहले हमें मीनिंग पता होने चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के। अब देखो जो प्राइमरी सेक्टर है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ विच प्रोडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। देखो कैसे, अगर शुगर केन प्रोड्यूस नहीं होगा तो शुगर कहाँ से आएगी, अगर कॉटन प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्लॉथ कैसे बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उस रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमारे तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे चलेगा। सो दीज आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। सो टू अंडरस्टैंड दिस इंटरडिपेंडेंसी लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक। अ कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स वाटर, sugar and artificial flavors. Suppose if there is no sugarcane production, then procuring sugar will become difficult and costly for the cold drink manufacturer, right? अगर sugarcane produce नहीं होगा तो जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको शुगर चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वाटर, शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले तो हमें शुगर ही चाहिए,
वाटर तो चलो अवेलेबल है, शुगर कहाँ से मिलेगी? प्राइमरी सेक्टर से। अगर प्राइमरी सेक्टर शुगर केन नहीं प्रोवाइड करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोल्ड ड्रिंक नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर इंडिया से नहीं मिलेगी शुगर, कहीं और से इंपोर्ट करेंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन हो जाएगी, प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब देखो, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, फील्ड्स हैं जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ ही शुगर केन इंडस्ट्री हो। तो जो भी शुगर केन इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश हैं। तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए वी रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन मींस टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें टर्शरी सेक्टर का पार्ट हैं। देखो, अब शुगर केन को ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हब तक पहुंचाएंगे, वहाँ तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। देखो, रास्ते में रिस्क भी बहुत होगा, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस भी चाहिए। वो डिपेंड करता है कैसा कैसा इंश्योरेंस, तो हमें इंश्योरेंस भी चाहिए। समटाइम्स हमारे पास इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता कि हम कैश ऑन एक ही बारी में कैश पेमेंट कर दें, तो कई बारी क्रेडिट परचेज करनी पड़ती है, क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें क्रेडिट लेना पड़ता है बैंक्स से, तो बैंकिंग सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें मीन्स तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, टर्शरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस की हेल्प से उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुंचाएगा। जब वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरी प्रोडक्ट, जो भी रॉ मटेरियल है, उसको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो प्रोडक्ट्स, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू यूज़ हैं, वो हमारे तक, कॉमन पब्लिक तक, कस्टमर्स तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो तीनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इफ़ वी टॉक अबाउट द 10th CBSE एग्जामिनेशन, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जाता है दैट हाउ these three sectors are interdependent. So this is the best example to keep in mind. These three sectors are interdependent, एक दूसरे पे dependent हैं. If you like this video, then don't forget to hit the like button, and if you are new to my channel, please subscribe ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इस प्लेटफॉर्म पे सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।